just listen me carefully. Whenever current pass in any object, किसी भी object में, किसी भी apparatus में, when it's working, when current is passes through them, so every object, every substance, every apparatus have different kinds of resistance in them. So whenever the more resistance is there, then current need to do work against the resistance, against the obstruction, against the hurdle, you know, and that work is actually converted into heat. तो जब कोई रेजिस्टेंस ज्यादा क्रिएट होता है किसी अपैरेटस में एंड जब करंट उसमें फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहां पे करंट को अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ज्यादा वर्क करना पड़ता है एंड दैट टाइम द अपैरेटस बिकम हॉट, द इंस्ट्रूमेंट बिकम हॉट बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि वो वर्क जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है. हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी and you know work and energy are the same thing. In grade 9th you might have studied work and energy. तो वर्क एंड एनर्जी इज द सेम थिंग, दोनों की यूनिट जूल होती है. तो वर्क अभी हम स्टडी करेंगे हाउ वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट इन द अपैरेटस. जैसे आपके घरों में भी आप टीवी कंटिन्यूअसली चलाते हो, लैपटॉप में आप चला रहे हो, आप लोग भी सब लैपटॉप फोन चला रहे हो कंटिन्यूअसली, जब हम इन अपैरेटस को काम में लेते हैं इट बिकम्स हॉट, क्योंकि कंटिन्यूअसली जब करंट फ्लो होता है किसी भी अपैरेटस के अंदर, देन व्हाट हैपन, the more current, more work has to do by the current against the resistance of the apparatus, and that work is converted into heat. So that's why heating effect of electric current को Joule's law of effect, Joule's law of heating effect भी बोलते हैं. आपके क्वेश्चन आता है what is Joule's law of heating effect. Joule was a scientist who gave this concept of heating effect. So just have a look on the screen share now what I'm going to explain you, and this derivation you need to write now. So just have a look here. Now see, when a potential difference is applied across a wire by means of battery, steady current begins to flow in the circuit. This circuit flow in the direction of decreasing potential. After some time the flow of current, the wire becomes hot. It means that the electric energy is being converted into heat energy. The heat so produced is called Joule's heat. उस heat को Joule's heat बोलते हैं because Joule was a scientist who gave this concept. And I told you that different apparatus have different resistance. So against the resistance, electricity current need to do work. Electricity need to do work against the resistance and becomes hot because they need to do work against the resistance, and that work is converted into heat after some time. जैसे आप लोग भी जब बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हो, जब वर्कआउट करते हो तो हमारी बॉडी हीट करने लग जाती है, कंटिन्यूअसली वर्किंग से हमारी बॉडी हीट करने लग जाती है. ऐसे ही अपैरेटस के साथ होता है, कंटिन्यूअसली वर्किंग से दैट apparatus also becomes hot due to the Joule's law of heating effect. The heat so produced is called Joule's heat. Various electronic appliances such as electric bulb, furnace, iron, geyser, heater are based on this effect. इनको पर्पसली दिस इफेक्ट के लिए बनाया जाता है. These are actually made by this effect only because यहाँ पे जो वायर काम में लिए जाते हैं, have you seen heater, have you seen geyser, उनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉइल्ड वायर्स होते हैं. दैट कॉइल्ड वायर्स आर एक्चुअली मेड बाय नाइक्रोम्स, दे आर एक्चुअली मेड बाय अलॉय. उनका मेल्टिंग पॉइंट और रेजिस्टेंस पर्पसली हाई किया जाता है. अगेन आई एम टेलिंग यू, नाइक्रोम का और अदर वायर्स का जो हीटिंग इफेक्ट के लिए काम में लिए जाते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट and resistance purposely high रखा जाता है. They are actually made by alloys. And how electric energy converted into heat energy in this, you know, in the iron, in the geyser, in the oven, in the electric heater, these actually are based on heating effect. Purposely इनको बनाया जाता है. तो how the electric energy can convert into heat energy in these appliances, because they have high resistance. So हाई रेजिस्टेंस के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी तो वही एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट द इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली नीड टू डू मोर एंड मोर वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, एंड दैट रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जब उनको उसको काम करना पड़ता है तो इलेक्ट्रिसिटी को वर्क करने के लिए वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है. व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर, देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स present in the conductor get accelerated and they kinetic energy that expands electric potential energy. During the motion, the free electrons collide with ions and atoms to conductor. Same work is done overcome this obstruction, and this work is converted into heat. The greater the number of electrons flowing per second, the greater will be the number of collision of electrons with ions and other electrodes,
and greater the heat produced, and you can say more and more resistance if we are offering in a appliances. अगर हम ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं किसी अप्लायंस में, जैसे हम नाइक्रोम में पर्पसली, टंगस्टन में पर्पसली रेजिस्टेंस ज्यादा डाला जाता है, so that more and more work has to do by the current against the resistance, and that work is converted into heat. Amount of heat produced in a conductor is depend on, just have a look, very very important. Amount of heat produced in a conductor is strength of current and the resistance of the conductor. These two are the very important factors affecting heating effect. ठीक है, एक तो जितना ज्यादा करंट अप्लाई कराओगे आप उतना ही क्या होगा, जैसे गीजर, आयरन, इन ये अपैरेटस ज्यादा करंट को क्या करते हैं, ज्यादा करंट एक्सेप्ट करते हैं, इनको पर्पसली ज्यादा करंट ड्रॉ करने के लिए 3 पिन वायर्स होते हैं, 3 पिन अप्लायंसेस होते हैं, एंड वन मोर, इनमें पर्पसली ज्यादा रेजिस्टेंस डाला जाता है, सो दैट वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस. नाउ the derivation, I'm going to come on the derivation, and maybe tomorrow I can explain you on the board. Now see, electric energy is defined as a total work done by current in an electric circuit. आपको पता है कि आपको यहाँ से निकालना है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, V इज इक्वल टू W ओवर Q. आपने पोटेंशियल डिफरेंस जो वेरी फर्स्ट डेरिवेशन क्या था, वेरी फर्स्ट डेरिवेशन पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W ओवर Q. यहाँ से आप W इज इक्वल टू V इंटू Q कर सकते हो, बिकॉज W इज इक्वल टू V इंटू Q हम यहाँ से निकाल सकते हैं. अब आपको पता है कि Q इज इक्वल टू IT होता है. We have done already कि Q की वैल्यू V इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू IT होता है. W इज इक्वल टू V इंटू Q आपने पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला से निकाल लिया. Q की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपका आ जाएगा V. Q की वैल्यू अगर आप IT पुट करते हो, अगर Q की वैल्यू IT पुट करते हो तो यू कैन टेक आउट W इज इक्वल टू VIT, isn't it? W इज इक्वल टू VIT तक समझ में आ गया आपको, क्योंकि we have not actually disturbed the V, but Q की वैल्यू हमने IT पुट कर दी यहाँ पे, then W इज इक्वल टू VIT, isn't it? And then after that just have a look, एक वैल्यू हो सकती है W की, अगर आपको वर्क डन पूछा जाए किसी अपैरेटस में तो एक वैल्यू ये लिख दीजिए, W इज इक्वल टू VIT. इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये डिफरेंट फॉर्मूलाज आपको काम आएंगे. ओके अब उसके बाद में आपको किसकी वैल्यू पुट करनी है, V की वैल्यू पुट करनी है. आपको पता है V की वैल्यू IR होती है ना, V इज इक्वल टू IR होती है, तो आपने V की वैल्यू यहाँ पुट करी तो V इज इक्वल टू IR और IT ऑलरेडी है तो W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT हो गया. आर यू क्लियर हियर? यहाँ पे V की वैल्यू आपने क्या लिखी, IR. जस्ट नोटिंग डाउन दिस कॉन्सेप्ट. ओके अब आपको डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है. तो दूसरा फॉर्मूला आपका निकल गया W का I स्क्वायर RT. पहले आपका फर्स्ट फॉर्मूला था VIT. द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ वर्क इज VIT. वर्क इज हीट हियर, यहाँ पे वर्क हीट है, समझ में आ गया. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी आर स्टडीइंग, क्योंकि W इज अल्टीमेटली कन्वर्टिंग इनटू हीट. तो W इज इक्वल टू VIT हियर एंड W इज इक्वल टू I square RT is the second formula of work. Now I is equal to V upon R, we know very well. अब यहाँ पे जो I की वैल्यू है I square RT आपने किया, I की जगह आप क्या लिख दोगे, V upon R. तो ये हो जाएगा V upon R square into RT. तो the next formula V square T upon R. यहाँ तक समझ में आ गया आपको. The third formula of work is V square T upon R. तो 3 formula we got of work is heating effect के 3 formula हमको मिल गए. H is equal to VIT, H is equal to I square RT and H is equal to V square T upon R. यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको. इज वेरी सिंपल. आपको करना क्या है, यू हैव टू गो ऑन द फर्स्ट स्टेप हियर, V is equal to W over Q. ठीक है, यहाँ से W की वैल्यू निकाली V into Q. Q की वैल्यू आपने Q is equal to IT, हमने वेरी फर्स्ट वी हैव डन दिस. तो वेरी फर्स्ट वी हैव डन, तो यहाँ से आप Q की वैल्यू IT निकाल, Q की वैल्यू IT लिख दो तो W इज इक्वल टू IT VIT हो गया. पहले आप V की वैल्यू पुट करोगे, V की वैल्यू होती है IR, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT. अब यहाँ जो I है, यहाँ I की वैल्यू पुट कर दोगे V अपॉन R, तो जो ये हो जाएगा V अपॉन R स्क्वायर इंटू RT. ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूलाज आपको मिल जाएंगे. W इज इक्वल टू VIT, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT एंड W इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R. यहाँ किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक में? अब आपका ये आता है हाउ मेनी फैक्टर्स हीटिंग इफेक्ट डिपेंड.
on how many factors heating effect depends. तो heating effects depend on, किस किस पे डिपेंड करता है हीटिंग इफेक्ट? V पे, I पे और T पे. आर यू क्लियर? V पे, I पे, T पे एंड R पे. ठीक है. हीटिंग इफेक्ट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, टाइम एंड रेजिस्टेंस ऑल. तो हीटिंग इफेक्ट के आपको तीन फॉर्मूला मिल गए, VIT, I स्क्वायर RT एंड V स्क्वायर अपॉन T. दिस इज व्हाट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है जस्ट लेट मी नो. इसके बाद आपका आता है पावर. You can see this one also. I already discussed. Heating effect is depends on electricity. Heating effect is depends on R, and heating effect is depend on time also. So heating effects के तीन factors which affect the heating effect is current, resistance and time. I square RT. ठीक है. These are the three factors on which heating effect depend. अब आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, then don't be confused. Now power, the rate of doing work. 9th क्लास में आपने पढ़ा है पावर के बारे में. Power is the rate of doing work. Rate का मतलब टाइम. तो पावर इज इक्वल टू W अपॉन T. अब यहाँ पे सुनो मेरी बात, W की जगह आप E भी ले सकते हो. E मतलब पावर इज इक्वल टू E अपॉन T भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है. तो पावर इज इक्वल टू E अपॉन T भी हम ले सकते हैं यहाँ पे. Isn't it? अगर आपको एनर्जी पूछी जाए तो पावर इज इक्वल टू E इंटू E अपॉन T होता है. ठीक है. From the first formula we have taken out W is equal to VIT. अभी आपने देखा ऊपर वाले में आपने W की वैल्यू निकाली ना VIT, तो आपने क्या करा, पावर W की जगह VIT लिख दिया बिकॉज वी हैव टेकन फ्रॉम द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट. W is equal to VIT, तो W की जगह हमने VIT पुट कर दिया. T से T कैंसिल हो गया. P is equal to V into I. इट्स वेरी सिंपल. पावर का फॉर्मूला याद करना बहुत सिंपल है. सुनो मेरी बात. हाउ पावर का फॉर्मूला लर्न करना इज वेरी वेरी सिंपल. आपको हीटिंग इफेक्ट में जहां जहां भी टी आ रहा है ना, जस्ट लिसन में केयरफुली, जस्ट हैव अ लुक हियर. क्योंकि आपको पता है कि जो पावर होता है वो रेट होता है, आप अपॉन टाइम चला रहे हो. ठीक है. तो हीटिंग इफेक्ट में जहां जहां भी टाइम आ रहा है ना, वो टाइम को क्या कर दो, आप कैंसिल कर दो, तो आपको पावर का फॉर्मूला मिल जाएगा. जैसे आपने यहाँ पे VIT लिखा, हीटिंग इफेक्ट में VIT लिखा, H इज इक्वल टू VIT, तो पावर के लिए V इंटू आई हो जाएगा. यहाँ पे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT कर रहे हो आप, तो यहाँ पे T हटा दोगे तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर R हो जाएगा. यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला V स्क्वायर T इंटू T अपॉन R कर रहे हो, यहाँ पे फिर से T हटा दो तो आपको पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R मिल जाएगा. यानी आपको पावर के लिए, अगर आपको पावर पूछा जाता है, हीटिंग इफेक्ट के तीनों फॉर्मूलाज लर्न कर लो, और पावर के लिए क्या करोगे, जहां जहां T आ रहा है वहां T रिमूव कर दो, तो यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ पावर. तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ rate of power. Are you clear everybody? This is about the power done by the electric current. This is what I wanted to say for today. If you have any problem regarding this topic, you can ask me. Power is equal to E into T भी कर सकते हो आप, W over T कर रहे हो आप. Now listen carefully. मैंने बताया आपको पावर इज इक्वल टू W अपॉन T कर रहे हो, तो पावर इज इक्वल टू E अपॉन T भी कर सकते हो. तो एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा आपका P इंटू T. एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P इंटू T. वन मोर फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज P इंटू T. और ऊपर भी आपको अगर सपोज करो एनर्जी पूछी जाए, यहाँ अगर आपको एनर्जी पूछी जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप W की जगह E ले सकते हो. V इज इक्वल टू E ओवर Q. तो यहाँ पे भी आपको एनर्जी का जो फॉर्मूला मिलेगा वो V इंटू Q भी हो सकता है. जस्ट पे अटेंशन. लेकिन आपको बेसिकली जो एनर्जी का फॉर्मूला ज्यादातर पूछा जाता है, वो एनर्जी का फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू W अपॉन T होता है, तो उसकी जगह E अपॉन T कर देना, तो एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू T हो जाएगा. मोस्ट ऑफ फॉर्मूला P इंटू T आता है. Are you clear everyone? Now this is what the unit of power. 9th में भी आपने पढ़ा है unit of power. 1 kilowatt is equal to 1000 watt. ठीक है. The basic unit of power is watt. WATT, watt. The basic unit of power is watt. 1 kilowatt is equal to 1000 watt. 1 megawatt is equal to 10 to raise 6 watt. 1 gigawatt is equal to 10 to raise 9 watt, and 1 horsepower is 746 watt. ये आप नोट डाउन कर लीजिए. This you need to note down right now. ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए. 1 kilowatt is 1000 watt. 1 megawatt is equal to 10 to raise 6 watt.
1 gigawatt is equal to 10 to the raise 9 watt and 1 horsepower is equal to 746 watt. याद रहेगा आपको? Just note it down. Now come to the problems. If you don't get, you just ask me. Just ask me if you have any problem, any doubt, just ask me.